Hello everyone, welcome to Learning Lab, where you can learn without limits. As we have discussed in our introductory videos, that we are going to discuss previous year questions of mains subject wise. Okay, so in today's video, we are going to discuss especially GS paper 3 in that specific section, stats. So basically it's eco section in which they have started asking questions specifically from stats after 2019. I mean since 2020 they have been focusing mainly on stats. Now we do not know that what they are going to ask in 2024. So we have to be prepared for each and every kind of question or googly that they are trying to throw at us. So what we are going to do, we are going to discuss these questions backwards. I mean, we will start from 2023 and then we will move our way backwards to 2020. In this section, we are going to particularly discuss stats question. After that, from 2019 onwards, which they have asked specially about economics, we will discuss those questions backwards. Okay. Now, we have already told you the type of pattern that they are asking, but let's discuss especially with respect to statistics. So what they are going to, what they're discussing nowadays is in section A, which is your 3 marker, in which you have to answer mostly in 30 words. Question number 13, 14 and 15. They are dedicating specially for economics. You go and check. Especially for B section, okay, in which you have 5 markers which you have to answer in 50 to 60 words. They are asking question number 9 and 10, especially for stats. And in C section, which is for 11 marker, they are asking question number 5. So how many marks you are going to get from your statistics part? 50 one question from here, that is 11 from here, 10 from here because there are two questions, and 3 question are from here, that is 9. So total 30 question you are 30 marks you are going to be asked from this particular section. So what we are going to do, अभी तो हम PYQ डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैक्सिमम 5 से 6 वीडियोस में हम पूरा का पूरा स्टैट्स ना रिवाइज कर लेंगे कि किस किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं आपको सारा का सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दूंगी. ऑल यू विल हैव टू डू इज प्रैक्टिस. मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने भी दे दूंगी. इट्स जस्ट आप 2 दिन भी लगा के बैठ जाओगे ना, आपका 30 मार्क्स क्लियर रहेगा पेपर में. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. मतलब ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स है. दिस आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट which you cannot let go. Everyone will be prepared for this, remember. And I will make sure that you do not lose this 30 marks. So let's start with analysis of 2023. First question in first section, which is for 30 marker, what did they ask is, by selling a chair, a person sold a chair for rupees 1564. Okay, and the shopkeeper suffers a loss of 15%. So what is the cost of that chair? So let's just see here. अभी मैं आपको right now I'm telling you how step by step you're going to write it. See, because here number of words would not matter that much, as much matter would your answer. वरना तो कोई भी कुछ भी गाना लिख के आ जाएगा words के नाम पे. आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए इसमें. ठीक है. So here let's see. They are saying we are losing 15%. How many total percentages are there with us? 100%. If we are losing 15% in that, we are going to have 85%. It means the realized value is 1564. Selling cost क्या है हमारा? 1564. And this is how much? 85% of our total. एंड यहाँ सबसे पहले लाइन में आपको लिखना है. ठीक है, फर्स्ट लाइन ही आपका यही रहेगा, लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ शेयर. ठीक है, तभी तो आप यहाँ पे लिख पाओगे 85% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1564. नाउ योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी वैल्यू ऑफ एक्स 1564 इंटू 100 अपॉन 85. नाउ you are going to solve this and write your answer in the comment section. Okay, now second
सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13 अकॉर्डिंग टू योर पेपर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, फॉर एनी डेटा मीडियन इज 25, मोड इज 24, देन फाइंड द मीन। दिस कैन बी वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक दैट दे कैन आस्क, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन में इससे आसान वो आपसे क्या ही पूछेंगे। डू यू रिमेंबर दिस डायग्राम? इफ नॉट, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। देयर इज अ स्क्यूड डायग्राम, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है। अब ये 3 लाइनें बनी होती हैं। नाउ द टास्क फॉर यू इज टू फाइंड आउट which line represents what. You have 3 value, mean, median and mode. I will write down the relation here, but you have to find out this. Go and check. आप नेट पे चेक करो, बुक पे चेक करो, नोट्स पे चेक करो, किसी में भी करो, यू विल नेवर फॉरगेट दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, सॉल्यूशन में आप लिखोगे वी नो, ठीक है। क्या पता है हमें, क्या जानते हैं हम इन तीनों के बारे में, तो इनका रिलेशन कैसे आता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। अभी हमसे मीन पूछ के रखे हुए हैं, सो लेट मीन इज इक्वल टू एक्स। नाउ गिवन भी लिखना है आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है। गिवन मीडियन इज इक्वल टू दिस मच, मोड इज इक्वल टू दिस मच एंड मीन इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे यहाँ सॉल्व करोगे। देयरफॉर 3 मीडियन that is 3 into 25 is equal to 2 मीन हमने x लिया हुआ है प्लस मोड। अब आप इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस एंड अगेन राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वी आर गोइंग टू चेक एंड जिसका भी जवाब सही होगा गलत होगा, वी आर गोइंग टू आंसर, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने क्या पूछा था 2023 में, if the numbers 2x, x8 are in the proportion then find x। अच्छा, before we solve this question let me tell you, अगर x x x proportion में हमें दिया हुआ है तो हम कैसे लिखते हैं, a b c d सपोज दिया हुआ है, ठीक है। तो proportion में हम कैसे लिखते हैं, सिर्फ this is only to explain you, ताकि आपको पता चले from where am I solving this question। a is to b, the ratio को हम is to बोलते हैं, a is to b और c is to d। अगर ये दिया हुआ है so how do we write this, a upon b is equal to c upon d, ये लिखते हैं। तो here also we are going to do the same, ठीक है। given proportions, ठीक है, क्योंकि proportion दिया हुआ है हमें, उनको पता चलना चाहिए। 2x x8, therefore 2 upon x is equal to x upon 8। अब आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको, 16 is equal to x square, therefore x is equal to रूट ओवर 16। बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है आंसर इसका, कमेंट करो मुझे। चलो, नाउ दिस इज इट, ये हो गया आपका 9 नंबर। कितना आसान है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सब, लग रहा है। नाउ सेकंड सेक्शन में आते हैं। सेकंड सेक्शन भी बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड सेक्शन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बोथ फॉर 5 मार्क्स। सी द पॉइंट हियर इज why I am trying to tell you these question numbers. Maybe they will change the pattern in 2024 as per the notification, but if they are going to keep the same pattern, then you must know that in which question number what can I anticipate, what kind of question can be asked in this particular question. This enhances your probability of selection, probability of getting more marks, probability of getting rank. Okay, so now coming to this question, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले व्हाट इज मीन, ठीक है, कमेंट करके बताओ मुझे एक बार व्हाट इज मीन। नाउ चलो, अगर हमें नहीं पता, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर्स, मतलब जो हमारे पास नंबर होते हैं उसका उसे हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन। बट द क्वेश्चन हियर इज डिफरेंट, इट इज नॉट वेरी सिंपल। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेंज का टेबल दिया हुआ है, and if we have range table that means we have to find frequency on our own, correct? So what do we have to do to find frequency here? frequency के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है frequency table के लिए, अपर वैल्यू लाइक अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका frequency का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। So you are going to make the table here, solution,
देन यू विल राइट लाइक गिवन, ठीक है। टेबल यहाँ बनाओगे आप पूरा का पूरा। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ लाइन्स हेयर, बहुत ही कचरा बनेगा। सो वीकली वेजेस यू विल राइट, देन नंबर ऑफ लेबर्स इसको आप x मान के चलोगे, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी टेबल आप फाइंड करोगे, देन fx फाइंड करोगे। मैं बताती हूँ fx क्यों फाइंड करना है आपको, ठीक। Now 11 to 13, 15, 17, you will write the complete table. I am just writing here to save the time. 23 and 25. X क्या दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ लेबरर्स क्या दिया हुआ है हमें, 3, 4, 5, 6, 5, 4 and 3. Now आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर दिस वन है। देखो यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि बीच की वैल्यू 12 है, बट कभी कभी क्या होता है ना, टेबल प्रैक्टिस आप करना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो सकता है 5 का दिया हुआ हो, तो वो 5 की फ्रीक्वेंसी में आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है जस्ट टू मेक श्योर, ओके। एंड समटाइम्स दिस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर इंटरचेंज्ड, ये सेम नहीं होता, हमेशा याद रखना। वी विल प्रैक्टिस दोज इन आवर वीडियोज। Upper limit and lower limit must be equal for these kind of questions. Now, if, what is the frequency that we are going to take here? Middle value would be 12, 14, here would be 16, 18, 20, 22 and 24. What would be fx? fx निकाल लेते हैं हम फटाफट सबका, क्या हो जाएगा ये 36, 14 4 56, okay. And this would be 80, 108, 100, 88 and 72. Now I am going to write down the formula here. Mean is equal to, इसमें अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीन। अब आप बताओ खुद, सम करो इसका और सम करो एक्स का, क्या आता है आपका आंसर, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। से आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट आंसर है, बट बेटर ये होगा ना कि आप खुद से भी तो एक बार पता करो, कैलकुलेट करो। आई एम गिविंग यू 10 seconds ऑफ टाइम। Okay, here answer would be 540 divided by 30. This would be your mean, ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेक्शन 3 का क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन 3 में हमें पता है 11 मार्कर के लिए हमें लिखना होता है आंसर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 इन सेक्शन 3 फॉर 11 मार्कर। देखो सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे देख के ना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द टेबल और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ जाता है, इफ वी गेट टू नो द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब प्रोबेबिलिटी में इससे अच्छा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। फिर देखो कैसे हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ए बी और सी 3 लोग हैं, चलो यहाँ मैं आपके साथ साथ बना लेती हूँ टेबल, ताकि आपको भी ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, टाइम बचेगा आपका और क्वेश्चन बार बार पढ़ने में दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। ये थ्योरी नहीं है कि जहाँ आप बैठ के सोचो, सामने डेटा दिख रहा है, लिखो, सॉल्व करो, खत्म करो, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए कैन हिट द टारगेट 3 times in 5 shots। ओके, माई एडवाइस इज ऑलवेज मेक द टेबल, ठीक है। मैं यहाँ आपको दोनों तरीका बता दे रही हूँ, पर कोशिश करो कि टेबल हमेशा सामने वाले को बना के दो। क्यों, ही विल बी वेरी इम्प्रेस्ड और शी विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। आप उनके लिए काम बहुत आसान करके दे रहे हो, उनके लिए पेपर चेक करना बहुत बड़ा टास्क होता है, सेम पेपर बहुत सारे लोगों के लिए। सो इट्स वेरी इजी, आप उनके लिए आसान करके दो जितना हो पाए। सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, प्रोबेबिलिटी, आप पूरा लिखना है इसको, ठीक है, ऑफ ए हिट द टारगेट, ठीक। क्या हो जाएगा 3/5। यहीं पे आप लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हिटिंग द टारगेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है 1,
और हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो नॉट हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5। अच्छा, यहाँ पे आप दो प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, वी हैव टू प्रोबेबिलिटीज, वन इज टू हिट द टारगेट जिसको आप पी से दिखा रहे हो, वन इज टू नॉट हिट द टारगेट जो पी डैश से है। ठीक है, तो सामने वाले को पता चल जाएगा दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो ऐसे ही हमें बी हिटिंग द टारगेट क्या लिख जाएगा 2/5, बी नॉट हिटिंग द टारगेट मिल जाएगा 3/5. Similarly for C, we are going to get 3/4 and 1/4. Now when I said that you have to make the table, तो आप क्या करो, एक टेबल बनाओ यहाँ पे, जैसे कि A B C, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी, पहला हिट द टारगेट, ठीक है, और दूसरा नॉट हिटिंग द टारगेट, ठीक है। ये आपका P डैश से आप दिखाओगे। तो अब यही नंबर जो है, ये वैल्यूज आपने यहाँ डाल दिए। बस अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है। आई एम टेकिंग अ डिफरेंट कलर हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट डीपली। पहला क्या बोल रहा है, एनी टू ऑफ देम हिट द टारगेट। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, एनी टू ऑफ देम हिट द टारगेट। बहुत लोग क्या गलती करेंगे, लाइक मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू दिस प्रोबेबिलिटी, दो लोग हिट कर रहे हैं टारगेट, so we are going to do this probability of A hitting the target and B hitting the target, then probability of B hitting the target, then C hitting the target, then probability of C hitting the target and A hitting the target. Can any one of you here tell me in the comment section that what is wrong with this? क्या गलत है इसके साथ? भाई उन्होंने पूछा any two of them hitting the target, every time two of them hitting the target, क्या गलत है? ओके, सो द थिंग, मैं एक चीज़ और लिखती हूँ यहाँ पे, फिर हम बताते हैं क्या गलत है, ठीक है। आप देखो, बहुत लोगों को देख के समझ आ गया होगा, पर फिर भी जिसे नहीं समझ में आया है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। व्हेन यू आर राइटिंग दिस, ए वाला जो पार्ट है, अगर आप ये लिख रहे हो तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि एक टाइम पे सिर्फ दो लोग शॉट ले रहे हैं, ओनली टू पीपल आर टेकिंग शॉट एट वन टाइम, ए एंड बी, एंड बोथ आर हिटिंग द टारगेट। बट उस समय सी क्या कर रहा है, भाई सी भी तो टारगेट, यहाँ पे लिखा है क्या ऐसा कोई कंडीशन? देयर इज नो कंडीशन गिवन हियर, एंड व्हेनेवर देयर इज नो कंडीशन गिवन, ऑलवेज assume that all of them are taking the shot. Clear? So for this, if A and B are hitting the target, C is not hitting the target. This is your complete one round. For every time A and C are hitting the target, B is not hitting the target. This is your second round. And similarly this will be your third round. Now have you understood कि क्या गलती है इसमें और इसमें? ये गलती नहीं करना, ठीक। Now all we have to do is write down the values and solve for the answer. वैल्यूज मैं आपको सॉल्व करके लिख के दे रही हूँ, आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट 3/5 into 2/5, but C is not hitting the target, so it will be 1/4. याद रखना, वैल्यू लिखते समय कभी कभी हम मिस्टेक कर लेते हैं, सो ऑलवेज राइट इट स्लो एंड करेक्ट, ठीक है। गलती नहीं करनी है इसमें। 3/5 into 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A not hitting the target, then B is hitting the target, that is 2/5. C, मैंने भी आपके साथ साथ गलती, then C is hitting the target again, so it will be 3/4. करेक्ट। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती है? फर्स्ट वाले के लिए आ जाता है आपका 6/100, सेकेंड वाले के लिए आ जाता है आई थिंक 27/100, एंड थर्ड वाले के लिए आ जाता है 12/100. Now solve this. I'm giving you 10 seconds of time. ठीक है, आंसर ये आ जाएगा आपका ओवरऑल 9/20. ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एटलीस्ट टू ऑफ देम हिट द टारगेट। ठीक, तो जब एटलीस्ट की बात आ रही है इसका मतलब दो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वाले भी होंगे, मोर देन टू वाले भी। तो मोर देन टू वाले क्या हो जाएंगे कि मतलब ऑल ऑफ देम आर हिटिंग द टारगेट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तीनों का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, सॉरी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, बी के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, फ्रॉम पार्ट ए
We know that probability of 2 people hitting the target is 9 upon 20. Therefore, more than 2 people hitting the target is equal to answer from part A plus probability of A intersection B intersection C. तो आंसर फ्रॉम पार्ट ए इज 9 अपॉन 20 प्लस यहाँ आप आंसर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इज 3 upon 5 into 2 upon 5 into 3 upon 4. And when you will solve this, you will get the answer somewhere around 63 upon 100. ठीक है, क्योंकि 9 upon 20 है, this will be 18 upon 100. सॉल्व करोगे तो आंसर वुड बी 63 upon 100. सो दैट इज इट. अब देखो 2022 में जब हम देखेंगे ना तो हमें कुछ कुछ पैटर्न रिपीट होते हुए दिखेंगे, जैसे कि इस टाइप का पैटर्न एक रिपीट होगा. ठीक है, एंड सम काइंड ऑफ पैटर्न वुड बी रिपीटेड हियर. आपसे एवरेज के क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू, जैसे ही हम स्टैट्स का पोर्शन कंप्लीट करेंगे विद इन दिस 5 to 6 वीडियोस वी विल कंप्लीट द होल स्टैटिस्टिक्स. आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. उसी वीडियोस को देख के भी आप चले जाओगे ना 3 दिन पहले, तब भी आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. बट ऑलवेज रिमेंबर, स्टैट्स रिक्वायर प्रैक्टिस. आपको देख के ऐसा लगे, यू विल थिंक दैट ओके दिस इज़ वेरी इजी, आई कैन डू इट. But when you are trying to solve the question, when you are writing with a pen and paper, scenario might be a little different. So while you are watching, our videos, but whenever we are giving you practice questions, try to practice them at least for your own sake. Okay. So we'll stop this here. See you all in the analysis of 2022 video. Thank you all for coming.